बेटा। अच्छा, आज का टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 7 को हमें स्टडी करना। तो आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी सारों को? अच्छा, इसमें टॉपिक के अंदर क्या है? मूविंग एवरेज मेथड है, फोरकास्ट है, ये चीजें मौजूद है। फोरकास्ट कितने बच्चे जानते हैं फोरकास्टिंग होती क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नोज व्हाट इज फोरकास्टिंग?
In this video, we're going to discuss what-if scenarios. In Plan It Together, a what-if scenario is an entirely separate instance of your scenario. It's a totally different container. So whatever you do in a what-if scenario doesn't affect your live scenario or the scenario you published. It lets you play around with your current schedule, lets you optimize differently, but it still contains all the same data. So when you do a data refresh, you're refreshing your live data and your what if data. So it's nice. All your data stays up to date, but you get to play around with the schedule and not affect anyone else. So I'm going to make a what if scenario off of this data here. I'm currently in a what if scenario. I'm going to create another one, but I just go to my scenarios tab at the top and I say copy to new what if scenario. And it's copying. तो बेटा मैं इसका जो है आपको लैब करवा दूंगा। जिस हिसाब से ये बता रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो क्या बताना चाह रहे हैं। फोरकास्टिंग होती क्या है, ये सवाल था मेरा। और फोरकास्टिंग हम करते क्यों हैं, ये जो है इसका जवाब दे रहे हैं। तो मैं चाह ये रहा था कि इसको ऐसे में पता बता सकूं। अब ये पता नहीं है उसमें निकल गए क्या निकल गए। तो फोरकास्टिंग के अंदर मतलब ये होते हैं कि हमारे पास कितना लोड आने वाला है या कितना हमारी प्रेडिक्शन है, हम इसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है। A video brought to you by Bass Business Solutions on why forecasting is important for business success. Wouldn't it be nice to see into the future of your business? With business forecasting, this is a reality. Done by using current and historical data, you are able to have accurate predictions for future trends and forecasts. With this increased visibility, you can analyze your business as a whole with the utmost confidence in the data. Let's start off by answering the common question, what is business forecasting? Business forecasting consists of tools and techniques used to predict changes in business such as sales, expenditures, profits, and losses. The goal of business forecasting is to develop better strategies based on these informed predictions, helping to eliminate potential failures or losses before they happen. So you might be asking yourself, why is forecasting important? Well, forecasting is valuable to businesses because it gives them the ability to make informed business decisions and develop data-driven strategies. Both financial and operational decisions are made based off current market conditions and predictions on how the future looks. Past data is collected and analyzed to find patterns used to predict future trends and changes. Forecasting allows your company to be proactive instead of reactive. So let's go over 3 ways forecasting can help your organization excel. 1. It helps set goals and plans. Forecasting allows businesses to set reasonable and measurable goals based on current and historical data. Having accurate data and statistics to analyze helps businesses to decide what amount of change, growth, or improvement will be determined as a success. Having these goals helps to evaluate progress and adapt business processes where needed to continue on the desired path. 2. Forecasting helps budget. Having visibility into potential trends and changes helps businesses to know where to allocate their budget and time spent on certain offerings such as products, services, or areas internally such as hiring and adjusting strategy. As Investopedia states, budgeting quantifies the expectation of revenues that a business wants to achieve for a future period, whereas financial forecasting estimates the amount of revenue or income that will be achieved in the future period. Number 3, forecasting helps anticipate change within the market. Having insight into not only current data, but projections of what could happen in the future can help businesses to make adjustments to business strategy and alter current operations in order to change their outcome. There are also various forecasting tools available, such as CRM and BI.
CRM stands for Customer Relationship Management, and many common true CRM solutions come with an integrated forecasting module. This can be used to create forecasted sales reports, enabling sales teams to fine-tune their selling strategy. Sales representatives can gain visibility into items such as their quotas at any given moment, while sales managers can make more informed business decisions on how their team should manage its resources. Making timely and informed decisions is critical to running a business. However, many organizations struggle to keep up with the growing amount of data being collected. BI, or business intelligence, facilitates and improves decision-making based on real-time information, while reducing complexity and costs related to data analysis and reporting. Today, big data and artificial intelligence have transformed business forecasting methods, and they are continuously evolving according to business needs and technology. As companies become more data-driven, efforts to share data and collaborate increases. A business intelligence system offers an effective way of acquiring the data you need for better forecasting. With better forecasting comes more efficient, productive, and cost-effective business. In summary, forecasting gives visibility into data, allowing businesses to adjust and adapt to future predictions by optimizing resources. There are various tools available that enhance a business's ability to gain information as well as have an overview of how operations, processes, budget, and more are running currently, and what should be changed and/or improved in order to reach future goals and opportunities. If you would like to learn more about forecasting, CRM, or BI, contact BAS today and we will have a subject matter expert reach out to you directly. जी बेटा, अच्छा यहाँ पे आप फोरकास्टिंग इस वजह से कर रहे होते हैं यहाँ ताकि आप बता सकें कि आपके पास मार्केट में आपकी क्या डिमांड है, से आप सी प्रिडिक्शन कर सकें इस चीज़ के अंदर। इसके फार्मूलाज भी हैं हमारे पास, मैं फोरकास्टिंग का फार्मूला आपको बता देता हूँ कैसे हम उसमें काम करते हैं, क्या कुछ है फोरकास्टिंग।
जी बेटा, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? आ रही है आवाज? इसके अंदर आप लोगों ने ये देखा, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आप लोग को आवाज आ रही? ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने बेटा ये देखा, ये आपके पास जो वैल्यूज है उस पर हम फोरकास्टिंग निकालना चाह रहे हैं। और फोरकास्टिंग के लिए जो है सबसे इजीएस्ट मेथड जो है हमें सिखाने के लिए टू पॉइंट फॉर्मूला। टू पॉइंट फॉर्मूले के अंदर क्या है? अच्छा, टाइम सीरीज होती क्या है? टाइम सीरीज के अंदर भी ये होता है। टाइम सीरीज का मैं उसकी छोटी बहन बता रहा हूँ, आपको समझ लीजिए। टाइम सीरीज के अंदर क्या है आपके पास कि आपका ये फंक्शन है, मैं आपको करवा दूंगा, मैं ये सब न्यूमेरिकल के साथ करवाऊंगा, आपको मजा आएगा। अच्छा, और ये है आपके पास टाइम सीरीज। क्योंकि मैं एआई में कर रहा हूँ ना, तो ये हमारे एल्गोरिथम हमें जुबानी याद है ये कैसे करते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है आपके पास टाइम सीरीज के अंदर, हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज है, अच्छा अब होता क्या है, अब ऐसे क्या है, उसके बाद ऐसे क्या है, नीचे आया, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, नीचे आया। तो आपके पास जो डोमेन होता है, आपके पास क्या होता है, ये जो आपका एक्स एक्सेस है वो होता है टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है, ये आपके पास कोई भी रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, एक्स डिपेंडेंट होता है और जो भी रिलेशनशिप है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये चीजें होती है। अच्छा, अब उसके लिए जब हमें काम करना होता है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, तो हमारे पास होता क्या है कि ये कितना ग्रो हुआ, तो इसकी बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कुछ ना कुछ क्या है, एम है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये एम है, अब हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये भी कुछ एम, ठीक है, स्लोप है। यहाँ से यहाँ तक ये भी कुछ एम है, भले नेगेटिव में ही है मगर एम है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बड़ा ये भी एम है, कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, ये भी एम है। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी क्या किया कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, हमारे पास जो ये वाला जो एरिया है हमारे पास, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, और ताकि आपको समझ में आए, और मैं इसको कलर कर रहा हूँ ऑरेंज। अबे यार, ठीक है बेटा। अब ये वाला जो स्लोप है इसको कैलकुलेट करने की लॉजिक क्या है? अब कैलकुलेट करने की जो लॉजिक है हमारे पास वो क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, x1, ये हमारे पास y1, यहाँ पर क्या x2, ये हमारा y2। ये फार्मूला हमारे पास वन पॉइंट फार्मूला है, y इक्वल mx प्लस c। हमने क्या किया, y2 माइनस y1 ले लिया हमारे पास, और हमने करने के बाद इसकी वैल्यूज m क्या होता है आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने लिखा हमारे पास। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन बन के सामने आएगी बेटा, वो आएगी जो हमारे पास इस पॉइंट की होगी, ये होगी y इक्वल mx प्लस c, ठीक है बेटा। y इक्वल mx प्लस c। अब आपके पास कितना है, y इक्वल टू n कितना है बेटा? अब n हमारे पास जो है वो 1.5 है, वो प्लस का, सही है। ये हो गया x और ये हो गया वहाँ प्लस, ठीक है मेरा बेटा। हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब प्लस के माने ये कि अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो फंक्शन 1.5 यूनिट ग्रो करेगा। अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो फंक्शन जो है 1.5 यूनिट ग्रो करेगा। ये हमारे पास का मतलब है। ये बात समझ में आई है आपके या नहीं आई, ये बता दो मुझे। गेट क्लियर टू यू? इसकी मुझे लैब भी करवानी है, मुझे लैब भी इसकी करवानी है। देखिए, आपको टाइम सीरीज है, एनालिसिस है, मार्कोवियन चेन है, सही है। मार्कोवियन चेन में टाइम सीरीज के बाद समझा देता हूँ आपको, और उसके बाद हम लेक्चर पे जाएंगे या बुक देखेंगे तो आपको हो सकता है डर लगे, मगर मुश्किल नहीं है बुक की। लैब पे नहीं, लैब की मैं अलहदा वीडियो बना के दूंगा आपको, लैब की वीडियो मैं आपको अलहदा बना कर दूंगा, और उसके अंदर ही प्रॉपर चल रहा होगा, काम हो रहा होगा। मैंने लास्ट टाइम करवाया तो है आपको, सही है। उसके अंदर जो है 8.1.1.2 जो था, जो हमने था वो गिवन था हम लोगों की तरफ से, तो वो मैंने उसको क्रॉस चेक किया था। ये जो वैल्यूज होंगी कुछ गिवन होंगी आपके पास, बेस लाइन आपको मिली भी होगी, ठीक है बेटा।
एक चीज भूल गया था ना मैं, याद है आपको? तो गिवन हो गया। ठीक है, ये बताओ एक बार समझ में किस किस को आ गई जो मैंने अभी करवाई है? अरे माइक में बोल दो। समझ में आ गई? कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ भी होगा इसको। अच्छा, अब मैं ये चाह ही रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको मार्कोवेन चेन करवा दूँ। मार्कोवेन चेन बता दूँ या टाइम सीरीज करते हैं, तो मार्कोवेन चेन करते हैं। और उसके बाद मैं लेक्चर समझाऊंगा आपको, और फिर आपकी भी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। बाकी मैं कैसे निकालेंगे, बाकी एम कैसे निकालेंगे? बेटा इसके पॉइंट्स होंगे ना। अरे बेटा तुम भी, मेरा बेटा आपके पास क्या है? तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वेट करो। ठीक है बेटा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे निकालना हो, कुछ टर्म्स को निकालना हो, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा? तो आपके पास होगा क्या कि इन दोनों का निकलेगा स्लोप। क्या मेरा बेटा, इसका निकलेगा, और उसके बाद जो स्लोप निकलेगा हमारे पास, मैं बना लेता हूँ। अब जो स्लोप निकलेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्लोप निकलेगा इन दोनों का। ठीक है बेटा, अब उसके बाद, इसके बाद आगे आने वाले जो दो वैल्यूज हैं उनका स्लोप निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या कि इसकी वैल्यू आएगी जो कि m1। ठीक है, ये बेटा आएगा m2, ये आएगा m3। अच्छा, अब हो क्या रहा है, या अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये ग्रो तो कर रहा है ना, ये प्लस में आ रहा है। अगर m1 आ रहा है पॉजिटिव, इसके माने फंक्शन ग्रोथ। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ नीचे जा रहा है। सही है, इसका मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है। और हमारा प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कि वी आर गोइंग अगेन गोइंग ऑन द प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको कर रहे होते हैं। पी टू पी का स्लोप क्यों नहीं, 0.2, 0.3 का स्लोप क्यों नहीं? अब आप, मैं टाइम सीरीज का, तुम एक मिनट ग्राफ देख लो, तुम समझ लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर लो। सही, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है, किस तरीके से होता है। थोड़ा सा वेट करो, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा बेटा, आप देखो इस पॉइंट पे जो पहली वाली वैल्यू है टाइम सीरीज की, इसको हमने कह दिया P1। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या क्या कहा हमने? ठीक है, अब ये वाली पॉइंट, हाँ आपका पॉइंट सही था। अब P2 और P3, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया P3। तो हमारे पास एक स्लोप ये होगा जिसको हम कहेंगे M1। ठीक है बेटा, ये कौन सा स्लोप होगा? सही। P1 एंड P2 दे रहा है M1, P2 एंड P3 दे रहा है M2। ये क्या दे रहा है? M3। ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? P4। बात समझ में आ गई? आपकी बात समझ में आ रही है? सही है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट में कलर चेंज कर देता हूँ उसका।
ठीक है, अब नेक्स्ट बता दो। ठीक है बेटा, अब बात क्लियर है, कुछ समझ में आई है बात? कोई मसला तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको? अब मैं चाह रहा हूँ मैं टाइम सीरीज को करवा दूँ, उसके बाद मार्कोवियन चेन बता दूँ आपके पास, उसके बाद चैप्टर शुरू करूँ, और आपको बीच में अंदर मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं आपको टाइम सीरीज एनालिसिस जो है मार्कोवियन चेन, उसका मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूँ बुक का। सही है, प्रॉपर लैब होगी ये एक्सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास जो सप्लाई चेन का सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स है, मगर बाकी जगहों पे देखिए मैं जो हूँ पढ़ाता हूँ, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ाता हूँ, लैब करवाता हूँ उसमें। सही है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ाता हूँ, लैब करवाता हूँ उसमें स्टैट्स की। मैं आपके पास ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लैब करवाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, बच्चों को बहुत सारी चीजें तो आ रही हो। ठीक है मेरा बेटा, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या। Understanding Time Series Analysis. This video introduces the main ideas of time series analysis. It is part of the At My Pace Time Series app for iPad and iPhone and online course. As in all statistical analysis, time series data is collected from a real-life thing that we are interested in. The data is analysed using a computer to give graphic and numeric output. The output of the analysis tells us more about the real-life condition. It can be used to make informed predictions of future values. A time series is a set of numerical measurements of the same entity taken at equally spaced intervals over time. Time series data can be collected yearly, quarterly, monthly, weekly, daily, or even hourly. Here are some examples of time series. Average monthly temperature, annual profit for a company, daily petrol price at the pump, hourly electricity consumption in the home, daily takings at a Chinese, seasonality, cycles, and unexplained variation. There can also be irregularities or outliers in these four aspects of behaviour: trend, seasonality, cycles, and unexplained variation. There can also be irregularities or outliers in the data which can be related back to real-world occurrences. Trend is the overall long-term direction of the series. Economic series usually go up, except when they don't. Some series have no discernible trend. Seasonality occurs when there is repeated behaviour in the data which occurs at regular intervals. Seasonality is related to seasonal natural or human behaviour. Cycles occur when a series follows an up and down pattern that is not seasonal. The cycle can be of varying length, which makes them more difficult to detect than seasonality. In all data, there is random variation. Some time series will be very regular, with little random variation, while others may consist of not much else. Sometimes there are strange dips or jumps in a series. These can be due to a one-off event, such as an ash cloud disrupting air travel, or an anticipated change in the rate of sales tax. There are many computer packages that make it very easy to do the mechanics of time series analysis. In our companion video, you can see how to use Insight to analyse seasonal data. It is very important to relate the mathematical aspects of the series to the real-life application. This is what makes time series analysis so interesting. In our other videos and in our At My Pace Time Series app, you can learn more about the जी बेटा कुछ क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ बेटा? कुछ क्लियर हुआ? व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? इज दैट क्लियर? हाँ, अब टाइम सीरीज एनालिसिस देखो हमारा चैप्टर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ये देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरकास्टिंग जो है इसमें टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज के अंदर ये होता है कि अगर कोई फंक्शन ग्रो कर रहा है एम रेट के हिसाब से, तो वो आपको पता लग जाता है कि अगर 1.5 एम के हिसाब से 1 यूनिट अगर एक्स इंक्रीज होता है तो फंक्शन 1.5 ग्रो करता है। अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन जो हमारे पास माइनस में डिक्लाइन आ रहा है या डिप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास जो है जो स्लोप है वो आ रहा है 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, यानी कि x एक बढ़ता है, x एक इंक्रीज होता है, तो फंक्शन 3 टाइम्स जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर हम x 1 यूनिट सेल करते हैं तो 3 टाइम्स जो है वो x से वो जो फंक्शन है वो ग्रो कर रहा होगा। और अब आप फ्यूचर टाइम के साथ क्या होगा कि अगर हमने ये देखा कि फंक्शन जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल वो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी हो गया, यानी सिंगल ग्रोथ पे आपको डबल मार्जिन मिल रहा है। इसका मतलब आपका फंक्शन ग्रो नहीं कर रहा, टाइम के हिसाब से वो डिक्लाइन में जा रहा है, आपके पास वो चीजें गिर रही हैं, आपकी मार्केट डिमांड जो है वो कम हो रही है। अच्छा, इस चीज का टाइम सीरीज को अगर मैं एक लफ्ज में बताऊं आपको, तो मैं ये बताऊंगा कि कौन सी सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जिसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बंद होने वाली है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है आपके पास ये सॉफ्टवेयर के शेयर्स गिर जाएंगे। हाँ बताइए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई लॉजिक है ऐसी जिससे बता सकें हम कि ये सॉफ्टवेयर जो है फ्यूचर के अंदर तबाह होने वाली है, खत्म होने वाली है? जरा फोरकास्ट जरा बताइए, क्या लॉजिक हो सकती है ऐसी जो सॉफ्टवेयर की प्रिडिक्शन को बता सके कि सॉफ्टवेयर के ये सॉफ्टवेयर जो है खत्म होने वाली है, अब इसको कोई यूज नहीं करेगा। बताइए। ये माइक में बोल रहे हैं भले। जी बेटा बोलिए, इंटरनेट पे चेक करके बता दें। इंटरनेट पे चेक करके बता दें, गलत ही बताएं, बताएं तो। बेटा इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं, बताएं तो, मुझे गलत ही बता दें। लाइफ इसमें, अरे बेटा क्या हो गया जी? कोई तो बता दो, नेट पे चेक करके बता दो। क्वेश्चन रिपीट करें, हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस सॉफ्टवेयर के शेयर ना खरीदें क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद होने वाली है? हाउ वी कैन चेक इट? भाई ट्रेंड है, मगर एक तो लफ्ज आपने बता दिया ना, हाउ। जी बेटा बोलिए। यूजर के अकाउंट से चले, एक जवाब अच्छा आया। और टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर रिलीज एज, चले एक और जवाब आया हमारे पास। और एक्टिव यूजर्स, चले अच्छा जवाब आ रहा है, गुड। और बताइए, फाइंड एस एल्गोरिथम, ओके वाओ, ठीक है। और बताइए, नेट पे चेक कर लो। फोरकास्ट तो डेफिनेटली है ही ना। रीडिंग, गुड। जी, कोई बंदा मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पा रहा। क्रेडिट क्वालिटी, चले प्योर फाइनेंशियल हो गया, चलो। और बताएं। 2 मिनट दे रहा हूँ, चेक कर लें, जवाब बताता हूँ।
जी जवाब आया कोई? चलिए खैर मैं वजह बता देता हूँ। जवाब जो है बहुत सिंपल सा है। उसके अंदर ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर जो चल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, हॉटमेल मशहूर क्यों थी? हॉटमेल क्यों मशहूर थी? व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आपने चैटिंग का उसके अंदर इंस्टेंस दे दिया था कि आप चैट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। आपके पास जो एक यूजर के कनेक्शंस हैं और जो बना रहा होता है तकरीबन 150 से करीब जो है वो ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में 150 से करीब उसके कनेक्शन होते हैं। 150, एक एक नोड के कनेक्शन 150 से करीब है, जो कर रहा होता है, जो फाइनलाइज कर रहा होता है पूरी कैलकुलेशन इस चीज की। अच्छा, अगर वो 150 तक रहते हैं या 151 की तरफ जाते हैं, इसके मतलब ये को सॉफ्टवेयर की डिमांड जो है वो ज़्यादा है और वो ग्रो करेगी। अगर वो 150 से 148 होते हैं, इसका मतलब है आपने नए फीचर सॉफ्टवेयर में डालने हैं। और 148 से 146 होते हैं, इसका मतलब ये कि अपनी टीम चेंज करनी है आपको, उस टीम से जो है ऐसा काम करवाना है जो कि मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैंने जो है वो डबल मास्टर्स है, तो मेरी सेकंड डिग्री मास्टर्स की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम इस तरह से इसको देख रहे होते हैं, 150 कनेक्शन निकालते हैं, पूरा फॉर्मूला आता है इसका, और उससे हम आराम से बता देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर चलेगी या बंद हो जाएगी, हमें पैसा यहाँ लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है ना बेटा? अच्छा, सेकंड चीज़ क्या थी जो मुझे बतानी थी, वो आप देखें, मज़ा आएगा आपको। Okay, the next lecture is about time series analysis. So let's start by defining a time series. And all it is an ordered sequence of values of a variable at equally spaced time intervals. And there are 4 examples shown here. And they all demonstrate characteristics that we're going to talk about throughout the rest of this lecture. एक सेकंड। Understanding time series. Hi guys, I'm going to show you how to deal with time series data in Excel. So we're going to jump right into an example. This is the quarterly sales data for car sales. Okay, so and it's quarterly because the sales, which is what we're measuring here, is recorded once every quarter. So we also have this column here, which is the year. So in year 1, quarter 1, sales were 4.8, and that's measured in thousands, so that means 4,800 units. In year 1, quarter 2, sales were 4.1, or 4,100. And finally, so we understand this data clearly, in year 4, quarter 3, for example, sales were 8,000 units, recorded as 8.0. Okay, so this right here comprises the historical time series data. Okay, and what we're measuring here specifically is sales, and the goal of all this is that we want to be able to understand how sales moves through time and then be able to project that or extrapolate that into the future, into perhaps year 5. Okay, so by the end of this video we should be able to make predictions for these blank cells over here, quarters 1, 2, 3, and 4. Okay, so let's approach this in a step-by-step fashion. So there's going to be a lot of columns we're going to have to create, plots, and little steps along the way. But the great thing is you can always pause the video and go back and see what I did. Okay, so step 1 is to just
visualize the data. So for this step, we're just going to create a line chart with markers. Okay, so let's do that. We go to Insert, Line, and we'll choose Line with Markers. Okay, and Excel sometimes just goes ahead and suggests some things, but we can clear that out by going to Design, Select Data, remove everything. So we start with a blank slate. Now we're going to add, the name of the series is Sales. Okay, that's the data that we want to understand and be able to eventually predict. Okay, and here's the actual historical data. Hit OK, and already you could see that there's this really cool kind of up and down cycling going on here. Okay, we're going to talk about that in a second, but before we finish this plot, let's replace this horizontal axis with the actual years and quarters, so we can always go to exact time point that we're interested in. For example, if we want to look at year 3, quarter 2, right now we would have to do a little bit too much thinking to find that. Okay, so let's fix that axis. We go Edit, and we can highlight both these. So if you have two columns like this that are connected that tell you the time, you can highlight both of them. Okay, hit OK. OK, and we're done. Maybe we give this a title, Time Series Plot of Car. जी बेटा समझ में आया? समझ में आया? दोबारा वीडियो प्ले करूंगा। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है टाइम सीरीज की। इसके अंदर हम सेल्स के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं कि ये क्या हुई है हमारे पास। अब हम ये देख रहे हैं कि हमको प्रेडिक्ट करें, तो बेटा यहाँ पर देखो, मैं इसका जरा नोट ऑन कर देता हूँ। तो इसमें आप यहाँ देखो इस पॉइंट पे। अच्छा, आप इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे ये, और इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे ये, और आप इस पॉइंट पे देखें, ये तकरीबन सिमिलर है। ये ठीक है, ये देखें सिमिलर है, यानी कि इनकी डिमांड जो है तकरीबन सिमिलर आ रही है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पे तकरीबन सिमिलर आ रही है। तो अगर आप जो है, अगर ये आपकी फॉर एग्जांपल मिठाई की दुकान है, सही है, और आप ये आपके पास जो टाइम आ रहा है यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से, वो हमारे पास आ रहा है 3rd और 4th क्वार्टर आ रहा है हमारे पास, यानी कि आपके पास जो आखिरी के जो हैं वो 12 महीने में से आखिरी के 3 महीने, तो उस 3 महीनों के अंदर हमारे पास ये बूम आता है। सही है, तो हमारे पास जो जून के बाद यानी कि जुलाई के अंदर जो है हमारी डिमांड बढ़ती है और वो दिसंबर तक बढ़ी रहती है, यानी कि दिसंबर यानी इस टाइम तक जो है हमारे पास डिमांड जो है आसमान पर होती है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से फोरकास्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने ये देखा कि हमारी गाड़ियों की सेल जो है वो 4.8 थी और वो आपके पास 4 सालों में 8.4 यानी कि 8,400 गाड़ियां जो हैं आप उसको सेल करने लगे हैं, तो आपने यहाँ पर फोरकास्ट ये किया कि आपके पास जो गाड़ियां आपको मंगवा के शोरूम में खड़ी करनी है वो जून के महीने तक कर लेनी है। समझ में आ गई फोरकास्टिंग? हाँ बोलिए, यस और नो? जी बेटा बता दो। समझ में आ गया आपके मैं क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप देखें कि आप अगर हम ये बात करें फोरकास्टिंग की और हम ये देखें लेस चिप्स जो हैं, लेस चिप है आपके पास, तो इसके अंदर अगर हम अमेरिका का ट्रेंड देखें तो अमेरिका के ट्रेंड के मतलब ये होते हैं कि 5 जुलाई से पहले कंसाइनमेंट जो है 20 जून तक जो है उनके स्टोर के अंदर, मॉल्स के अंदर लेस चिप्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। क्या बोला मैंने? 20 जून तक उनके पास कंसाइनमेंट जो है लेस चिप्स के, क्योंकि लोग छुट्टियों पे निकलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और वो जो आपका 5 जुलाई का इंडिपेंडेंस डे है, सही, तो इंडिपेंडेंस डे से 20 जून को आपके पास स्टोर के अंदर आपके पास कंसाइनमेंट होनी चाहिए लेस चिप्स की
तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये स्टॉक के अंदर मौजूद हो, और जब 5 जुलाई को लोग जा रहे होंगे घूमने फिरने के लिए, चिप्स खरीदने के लिए आ रहे होंगे, तो आपके पास स्टोर में चिप्स नहीं होंगे। ठीक है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस आपको प्रिडिक्शन देती है। तो आपकी प्रिडिक्शन समझ में आई या नहीं आई? जी, प्रिडिक्शन समझ में आई या नहीं आई? जी, ओके। और कोई बच्चा जिसको मसला हो तो मुझे बता दे। सही है, तो ये मैंने बता दिया हम टाइम सीरीज पे कैसे काम कर रहे होते हैं। ये तमाम चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी कि कैसा काम होता है, क्यों होता है, क्या कुछ होता है। सही है, तो टाइम सीरीज हमें जो है मैं आपको इसकी लैब करवा दूंगा, बुक का क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवा दूंगा एक्सेल के अंदर कंप्लीट। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको, जैसे अभी आपने देखा कि आपने टाइम सीरीज निकालनी है, बैठ के आप क्या करेंगे, आपने साल लिखा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, क्वार्टर लिखा, और उसके बाद ये सेल्स है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमारे पास, और ये ग्राफ के थ्रू। ठीक है मेरा बेटा, तो हमारे पास ये पूरी लाइन बन गई। अब ये क्या है, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये M1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये M2 है, यहाँ से लेके ये M3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये M4 है। अच्छा, इसका मतलब इतना स्टॉक मंगा के ना रख लें कि आपको अगले 6 महीने वो गोडाउन में वो रखना पड़ जाए। ठीक है बेटा, अब ये एम आपको बता रहा है कि यहाँ से यहाँ शूट कर रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके बाद ये डिमांड डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइन यानी कि डिमांड ऐसी नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पर डिमांड डिक्लाइन हो रही है कि 6 महीने तक आपको जो है उस चीज को, आपको आपका समझ लें कि गोडाउन जो है उसके अंदर ये चीजें भरी रहेंगी, और आप उसको फेंक नहीं सकते, आपके पास जगह नहीं होगी। बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? प्रिडिक्शन समझ में आई है? प्रिडिक्शन हम किस तरह से कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग हम किस तरह से कर रहे होते हैं, चीज़ों को, ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं टाइम सीरीज के। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, या आप जो है मैं कोई लिंक शेयर कर देता हूँ आपको इस वीडियो का, तो आप इसको घर पे जाके देख भी सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, आपको तमाम चीज़ें मैं बता दी हैं। हमें कैसे आइडिया होगा कि कितना स्टॉक रखना है? बेटा स्लो, आप वही वाली बात है ना कि आप शुरू के अंदर जब बिजनेस करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास बाइंग पावर कितनी है, आपके पास जो लोग हैं उनके पास कुव्वत खरीद उनकी कितनी है, और कितना वो खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दुकान खोल ली, सही है, मैं कई लोग बिजनेसमैन को ऐसे जानता हूँ, उन्होंने खोल ली पिज्जा की उन्होंने शॉप खोल ली। अब पिज्जा की शॉप के अंदर जो है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा है? सबसे पहली बात ये कि वहां पे ये देखा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं कि एक वक्त का खाना जो है वो 500 रुपए का खा सकते। सही है, जो बंदा 500 रुपए का पिज्जा खा सकता है, तो उसका मतलब ये एक वक्त का, तो इसका मतलब ये कि वो रात का खाना और सुबह का खाना मिला के वो अपने पर मैक्सिमम 700 रुपए वो एक दिन में अपने पर लगा सकता है। जब वो 700 रुपये अपने पर लगा सकता है, वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, 800 रुपये, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 से, तो तकरीबन 24,000 रुपये अगर वो बंदा अपने पर लगा रहा है। सही है, और बिल, बिजली के बिल आप लगा लें 5,000 रुपये इस तरह करके, इसका मतलब उसकी सैलरी जो है 1 लाख के अराउंड है सैलरी, तो वो ये काम कर सकेगा। ठीक है मेरा बेटा, तो अगर उसकी सैलरी 1 लाख के बराबर, वो ऐसी जगह पे रह रहा है कि जहाँ पे उसकी ऐसी लोगों की अर्निंग नहीं है इतनी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लोअर मिडिल क्लास है, मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये सैलरी, मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये सैलरी। अब उसके अंदर उसके लिए जो है पिज्जा को बाय करना इतना आसान नहीं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो है कंज्यूमर, जैसे बोलते हैं बाइंग पावर क्या है। अगर बाइंग पावर लोगों की कम हो रही है, सही है, बाइंग पावर कम होने की वजूहत क्या होती है? बाइंग पावर इस वजह से कम होती है कि अगर आपके पास जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं,
उसमें होता क्या है कि वही टैक्सेस जिसकी तनख्वाह हमारे पास 20 लाख रुपए महीना है, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस वही लगेंगे, पेट्रोल पे वही टैक्स लगेगा, रोटी पे वही टैक्स लगेगा, आटे पे वही टैक्स लगेगा, तो उसके लिए वो मुल्क जन्नत होगी। क्यों? क्योंकि वो वही टैक्स दे रहा है जो ये गरीब आदमी दे रहा है। और ये गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, ये वो भी अगर वही टैक्स दे रहा है तो उसकी तनख्वाह के हिसाब से वो टैक्सेस जो हैं बहुत ज्यादा है। सही है, उसकी बाइंग पावर खत्म हो गई है, वो ज़कात फित्रे पे आ गया हो। सही है ना, आप ये समझ लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, मैं बाकायदा फंक्शन बनवाता हूँ कि किस तरह से हम टैक्स लगाते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वो बंदा जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है ज़कात फित्रे पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसको भी वही टैक्स देना पड़ रहा है जो एक अमीर तरीन आदमी को देना पड़ रहा है। सही, तो ये मसला होता है। तो हम कभी भी ये नहीं करते, तो करते क्या है, जब रिसेशन अमेरिका के अंदर आया, तो आपके पास अमेरिकन के अंदर भी ये है कि उनका दिमाग खराब होता है, इतने अक्लमंद लोग नहीं होते। हालांकि मेरी भाभी हैं अमेरिकन, फॉरेनर्स हैं वो। सही है, उनका इतना अक्ल दिमाग चलता नहीं है उनका। तो कहने का मतलब यही, उन्होंने क्या किया कि आपके पास गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हर बंदे जो टैक्स है वो बढ़ा देते हैं, टैक्स नेट बढ़ा देते हैं। अब रिसेशन के माने क्या होते हैं? रिसेशन के माने ये होते हैं कि बंदे के पास जॉब से फारिग हो रहे हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनके पास रहने को भी घर नहीं है, उनकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो वो कमाते हैं, जाके वो शाम में जाके पब में जाके बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं, गोल गपाड़ा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनको सुबह उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। ये उनकी लाइफ साइकिल है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही है। तो बंदा करे तो क्या करे? तो जब आप इस पर टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो प्रॉब्लम जो है वो यही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब ये प्लान रखा तो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सामने आ गए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो जैसे इंडिया में सामने आए, इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए, उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि जो चल रहा है उसको चलने दें। सही है, आप हम पे टैक्स लगा दें कि हम हाथ हाजिर हैं। 2 लाख टैक्स लगाएं, 20 लाख टैक्स लगाएं, जितना टैक्स लगाएं हम हाजिर हैं। हम पर टैक्स लगा लें, हम टैक्स देने को तैयार हैं, मगर आप पब्लिक को टच नहीं करेंगे। सही है, वहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये बात की है, और उन्होंने अमेरिका को चला दिया। सही है, और अमेरिका के अंदर जो पब्लिक है वो जॉब ना होने के बावजूद भी चल पड़ी, मुल्क चल पड़ा वो। सेम फॉर द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं ये टाइम सीरीज ही बता रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या था? हाँ हाँ बेटा, मैं समझा रहा हूँ अभी, आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार सब्र करो। टाइम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही है। उसके अंदर हुआ क्या, जब रिसेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया तो लोगों के पास जॉब नहीं थी, खाने पीने को नहीं था, बहुत बुरे हालात थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने क्या किया, उनका प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे में टैक्स लगाऊंगा तो लोग झगड़े फड्डे फसाद हो जाएंगे, लोग स्टोर लूटेंगे, लोगों को मारेंगे, गाड़ियां चोरी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, क्राइम रेट डबल हो जाएगा। हमें उसको कंट्रोल करने के लिए फौज लानी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी, उसको फंड देना पड़ेगा, पैसा हमारे पास है नहीं, वो हाउ वी कैन हैंडल इट, बहुत मसले जो है। तो इन शॉर्ट उनकी समझ में क्या बात आई, उनकी समझ में मुसलमानों वाला आइडिया आ गया। सही, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं जो कि हम उनके पास नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया की है, हम उनको महीने का $1,000 दें, गवर्नमेंट सपोर्ट फंड हम आपको देंगे। आप क्या करें, उस $1,000 से आप खरीदारी करें, अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, घर का किराया दें, आप मजे से रहें। सही है, हम आपकी इकॉनमी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, उन्होंने 5-6 महीने ये किया है, और पैसे देना इतना आसान नहीं होते, मगर उन्होंने अपनी पब्लिक को दिया। जैसे ही उनके हाथ में पैसे आए, उन्होंने क्या किया, पहली फुर्सत में जाके जो खरीदारी की, स्टोर में गए, बोतलें खरीदी, दूध की बोतलें खरीदी, ब्रेड खरीदी, चिकन खरीदी। अच्छा, अब हुआ क्या, वो पैसा जब लोगों की जेब से निकला और इंडस्ट्री के अंदर गया, तो इंडस्ट्री के अंदर नीड बढ़ी, डिमांड बढ़ी, उसके अंदर सप्लाई चेन इंक्रीज हुई लोगों के अंदर, यानी कि एक इकोनॉमिकल साइकिल जो है चल पड़ी। अच्छा, उस पर जॉब्स बढ़ी, जॉब्स बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को अपॉइंट किया गया, लोगों को जो निकालना था वो रोक दिया गया, गाड़ियों की नीड हुई। सही है, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया रिसेशन जो है वो खत्म हो चुका, हो गया। बात समझ में आ रही है? तो बात होता है, कुछ चीजें जो हैं वो जैम हो जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हालात होते हैं। सही, एकदम जो है वो बदतरीन हालात हो जाते हैं। तो कराची वाले क्या करते हैं, अगले दिन उठते हैं, दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। सही, अगले दिन फिर काम पे कर लेते हैं, फिर वो काम था, ये सारे मेहनती लोग हैं, वो काम करते हैं।
टैक्स पहुंचता है गवर्नमेंट को, सही है, गवर्नमेंट जो है रिस्टोर होती है, तो उसके बाद जो है वो इकोनॉमिकल साइकिल जो है वो रिवाइव हो जाती है, चलने लग जाती है। तो मैं इस तरह से मैं आपको कई 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिसके अंदर जो है चीज़ों को मैटर किया गया, बनाया गया, और फोरकास्टिंग जो है वो की गई कि हम इतना पैसा लगा तो रहे हैं, क्या हमें मिल जाएगा। हाँ, वो पैसा निकल आता है, वो पैसा कहीं नहीं जाता, सही है, गवर्नमेंट वापस भी ले लेती, कोई ऐसा इशू नहीं होता। जी बेटा, अब आपका फुबैर बेटा मुझसे पूछ रहा था। जी बेटा फुबैर, बेटा वैसे ही माइक पे पूछ लो, बार बार क्लिक क्यों करवा रहे हो। हाँ, सही है। तो अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको इससे अच्छी एक और एग्जांपल बताता हूँ। इससे अच्छी एग्जांपल जो है वो लंदन की एग्जांपल है। अगर लंदन की हम 10 साल पुरानी बात करें, देखिए जो जहाँ कैपिटल मार्केट होती है ना, फड्डे बहुत होते हैं। कैपिटलिज्म, ये बात याद रखिएगा, आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट नहीं है, मगर मैं कंप्यूटर साइंसेज की फैकल्टी हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फैकल्टी हूँ, मगर जितना बिजनेस को मैं जानता हूँ ना, मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता। मैं बहुत ज्यादा बिजनेस को स्टडी करता हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम आज से 10 साल पहले ब्रिटेन की बात करें, बरतानिया की, तो बरतानिया के अंदर आप लंदन में जाएंगे, आपको मिलेंगे लोग जो लोग समझते हैं कि वो लंदन जाके अमीर हो गए, वो एमएफओ की जन्नत में रहते हैं। तो ये लंदन जो है काफी महंगा शहर है, पहली बात ये। लंदन के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, दूसरी बात ये। लंदन के अंदर खाना जो है काफी महंगा है, तीसरी बात ये। नंबर 4 ये कि लंदन की सड़कें जो है मशहूर हैं कि इसमें भूखे लोग घूम रहे होते हैं, यानी हंगरी, भूखे लोग जो है वो घूम रहे होते हैं, तो भूख लग रही होती है, वो कुछ खाने को नहीं मिल रहा होता, वो घूम रहे होते हैं। तो एक लंदन की कुछ हकीकत है ये। अच्छा, अब लंदन के अंदर जो है जब आपके पास ये लेबर पार्टी आई, इस लेबर पार्टी के अंदर जो है वो है, उस लेबर पार्टी के अंदर आने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है मुस्लिम हैंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा हट रहा है, मगर मैं आपको ये चीज समझा के सिखा दूंगा मैं आपको। टॉपिक उसका नाम है मुस्लिम हैंड ऑर्गेनाइजेशन है ये आ गया यूके का। देखिए पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आई है मुस्लिम हैंड। ये जो है आपके पास 1983 में बनी कंपनी, एनजीओ है ये। अच्छा, इस एनजीओ ने क्या किया, ये बिल्कुल यही कंपनी है, इसने क्या किया, ये जो है आपके पास क्या करती है कि आपके लंदन के अंदर इन्होंने क्या किया, मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस के अंदर लंदन के इन्होंने एक दुकान ली। अच्छा, दुकान के अंदर उन्होंने क्या कहा कि उसके अंदर आपके पास जो खाने हैं, बेहतरीन खाने, यानी पिज्ज़ा भी है उसके अंदर, हॉट डॉग भी है उसके अंदर, बर्गर्स भी हैं, कॉफ़ी भी है, चाय भी है, फ्रूट्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वेज है, नॉन वेज है, हर चीज़ फ्रेश। सही है। आपको, आप इस करीब से गुजर रहे हो ना, आप डाउट में हो जाएंगे कि यार ये कितने पैसे लेंगे पता नहीं। सही है, बुफे सिस्टम है उसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया, वो खोला लंदन में। लंदन में खोलने के बाद क्या किया कि अब जितने लोग जो था, क्राइम रेट जो था, चोरी कर गए, भाग गए, पर्स चुरा लिया, ब्लेड गर्दन पे रख दिया, पैसे लूट लिए, औरतों को उठा के ले गए, ये सारे हफ्शी कर रहे होते थे। ये क्राइम रेट जो है, जैसे इन्होंने एक महीने के अंदर क्राइम रेट 20% से 0.2% पे आ गया। लंदन का क्राइम रेट 20% से 0.2% पे आ गया। सबको वेलकम किया उन्होंने, जिसको आना है आए, खाए, सुबह का नाश्ता बेहतरीन, गर्म, ताजा। सही है, आपको लगे कि होटल होटल है, आपको ऐसा लगे इतना जबरदस्त बनाया हुआ है। अगर वीडियो होगी मैं वीडियो दिखाऊंगा, मगर ये वीडियो वीडियो पब्लिक पे लगाते नहीं है, ये माइंड करते हैं इस चीज को कि लोगों के वो चेहरे दिखाएं तो वो खाना खा रहे हैं हमारा। उसके बाद अंग्रेज बैठे होते हैं, अच्छा ही, आप उसके अंदर चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं इसके अंदर। इनका जो जो मंथली बजट बनता है ना खाने पीने का, बनता है 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड के अंदर जो है ये करते हैं। तो लेबर पार्टी जब इन्होंने ऐसे काम, डिफरेंट सेंटर जब लंदन में खोले, तो लंदन का क्राइम रेट गिर गया। तो लंदन में क्राइम रेट गिर गया, तो हुआ क्या कि उसके बाद लेबर पार्टी जीत गई, और कौन सा, सादिक खान जो है वो लंदन का मेयर बन गया। और लोगों ने उसको सपोर्ट की, मुसलमानों से ज्यादा सपोर्ट उसको बाकी कम्युनिटी ने की, क्रिश्चियंस ने की, और लोगों ने किया कि भाई आप चलाएं। दिस इज द सेकंड टाइम अभी तक जो है वो लंदन का मेयर है, और लंदन के हालात उसने सही कर दिए, चीजों को खड़ा कर दिया।
तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम उसका टाइम सीरीज का ग्राफ देखेंगे तो 20% से डिक्लाइन होकर वो जमीन की तरफ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। इसका मतलब क्राइम रेट जो है कम हुआ है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में काम करते हैं ये लोग, मुस्लिम हैंड्स, ये आपके सामने सब चीजें चल रही हैं। और ये बहुत ही हमारे यहाँ इस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है, वो आपके पास जेडीसी है हमारे पास, और नंबर 2 जो है आपके पास क्या है, वो 1020 है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ईदी फाउंडेशन है, जो काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अल्लाह वास्ते में काम करते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल बेटा सैलानी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, तो ये सैलानी टाइप के ही हैं ये लोग जो है ना, आपके मुस्लिम हैंड्स वाले। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी। अच्छा, अब जो हमारा काम है, जो पढ़ने वाला जो काम है, वो ये वाला काम है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोरकास्ट। और फोरकास्ट में आप ऑलरेडी पूरा अपना लेक्चर लिख सकते हैं कि फोरकास्टिंग होती क्या है। आप बता सकते हैं फोरकास्टिंग के अंदर आपने एक्सेल की एग्जाम्पल देखी कि इसके अंदर होता क्या है, कैसे हम काम करते हैं, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये तमाम जो चीज़ें बताई हैं। अच्छा बेटा, अच्छा क्वालिटेटिव डेटा जो है सर्वेस कहलाते हैं। सही, क्वालिटेटिव डेटा जो है सर्वेस कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा जो है एम्पेरिकल मॉडल्स कहलाते हैं। इसमें फर्क है, मैं बता दूं। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब सर्वेज हैं हमारे पास, फॉर्म्स हैं आपके पास, बेस्ट चॉइसेस हैं, ये आप ले रहे होते हैं। जो एमबीए वाले काम करते हैं वो क्वालिटेटिव डेटा पे काम करते हैं। जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा पे करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करते हैं। सही, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर जो है, जैसे आपने मुझे अभी बताया, मेरा पहला सवाल ये था कि वो पता कैसे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर डूब रही है। तो आपके पास मैंने आपने सवालों के जवाब बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। अगर उसके कनेक्शंस ड्रॉप हो रहे हैं, अगर उसके कनेक्शन ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि कम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक बंदे के 150 कनेक्शंस नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर डूब रही है। सही है, तो आप एक क्वालिटेटिव डेटा के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा का जो टूल जो सेट किया है, वो क्वांटिटेटिव डेटा के नंबर 150 ने किया। 150 नंबर ही कहता है कि भाई आपने सर्वे किया और सर्वे से 150 आपके नंबर अगर बन रहे हैं तो सॉफ्टवेयर चल रही है, नंबर नहीं बन रहा है तो सॉफ्टवेयर आपकी डूब रही है। बेटा समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अरे बता दो। सिमुलेशन, ये सारी चीजें, डिमांड, डिमांड, अच्छा ये सब चीजें जो है हमारे पास, ये थ्योरेटिकल चीजें, अंडरस्टैंड द वेक्टर फोरकास्टिंग, डिमांड। मैं आपको जब लैब कराऊंगा ना बेटा, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये सब थ्योरी जो है आप खुद लिख सकते हैं कि ये है क्या, डिमांड के फायदे क्या हैं, फोरकास्टिंग कहते किसको हैं, ना करें तो क्या होगा, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव मिक्स। तो इसके फार्मूलाज हैं हमारे पास, सिस्टमेटिक कंपोनेंट, डेविड ट्रेंड, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। ये आपको जब मैं लैब कराऊंगा ना, मैं तो उसके अंदर तमाम चीजें में डाल दूंगा इसमें, जो मेथड है टाइम सीरीज के। सारी इसकी लैब्स हैं, एक्चुअल में लैब्स हैं। ये आप देखें, ये अभी मैंने करवाया ना, ये पीरियड आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो, ये इसका एम जो है वो अच्छा नहीं है, इसका एम इज गुड, इसका एम थोड़ा सा इम्प्रूव है, नाउ डिक्लाइन। ये टाइम सीरीज कहला रही है। अच्छा बेटा, लैब के लिए आप मुझे बताएं मैं कौन सा टाइम निकालूं आपके लिए। ये सब लैब्स हैं इसके अंदर, ये चैप्टर 7 के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय लैब्स के। आप मुझे टाइम बता दें तो मैं आपको जो है वो लैब में ले लेता हूँ, भले कोई भी टाइम हो। या अगर आप बुध मंगल जुमेरात को कर लें, आप मुझे कह दें जुमेरात को, तो मैं एक एडिशनल जो है स्लॉट निकालूंगा आपके लिए, उसमें लैब करवा दूंगा। क्योंकि देखो सब बेटा, ये लैब है, ये इसके अंदर जो है ना, मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ उसमें, मुझे बताओ। ये मैथमेटिक्स है इसके अंदर, तो जो आपको एक्सेल पे काम करवाना है इसमें, ये देखो सारे के सारी लैब है। बगैर लैब के मैं पढ़ाऊंगा, मुझे समझ लीजिए मुझे रात में नींद नहीं आएगी। देखो मूविंग एवरेज मेथड, ये आपको समझाया। तो मूविंग एवरेज होता क्या है कि आप चीजों को आगे की तरफ लेके जाते हैं। D1 120 D2, ये भी लैब ही है इसके अंदर।
D4 D3 जितने भी D हैं हमारे पास, आपने 8 के डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 120.75 आ गए हमारे पास। अब आपने क्या किया, F5 माइनस के D5, सही है। अब D5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, D5 क्या है, आफ्टर 125 है हमारे पास। एज डिमांड पीरियड 5, D5 इज 125। देखो अब यहाँ पे क्या है, इफ डिमांड पीरियड पीरियड 5 टर्न टू बी 125 गैलन। अब इन्होंने एक स्पेकुलेशन की 125 गैलन की डिमांड है। अब आपने फोरकास्ट 125 किया है, डिमांड थी इतनी वाली, जवाब बचा 4.25। अभी हमारे पास क्या हुआ, एरर आ गया। यहाँ पे एरर के माने क्या हुआ कि ये आपका लॉस में आ गया, आपको रखना पड़ेगा। तो ये मूविंग एवरेज से हमें पता लगता है चीजों का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसको पढ़ाते हैं, वो मूविंग एवरेज मेथड का एनालिसिस करवाते हैं। उससे ये होता है कि वो ये देखता है कि आपका एक्यूरेट वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो मूविंग एवरेज काफी अच्छा मेथड है एआई के अंदर। एआई के अंदर फोरकास्टिंग होती है ना, तो ये करवाता है। इसमें करते क्या, जितने भी नंबर होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं। और फिर जो बंदा स्पेकुलेट करता है, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा कि आपको कितनी भूख लगी, आपने कहा मुझे एक रोटी की भूख लगी है, तो मैं कहा, ठीक है सही है। अब आपने लेट से आप दौड़ भाग करके आए हैं, स्पोर्ट्स खेल के आए, अब मैं आपने स्पेकुलेट किया कि आपको एक रोटी की ही भूख है, मगर आपको भूख जो थी वो 3 रोटी की थी मिसाल के तौर पर, तो एरर आ गया। यानी कि हमारे पास क्या है, 2 रोटियां, 1 - 3 के माने आपके पास -2, यानी कि 2 रोटियों की कमी है। तो फोरकास्टिंग आपको गलत हो गई। जब फोरकास्टिंग गलत हो गई, इसका मतलब ये कि आप उस चीज को सही तौर पर मीट नहीं कर सके। तो ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। ये सारा कोर्स जो है आपका, हम लोग पढ़ाते हैं इसको बिजनेस मैथ्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर, एआई के अंदर, सब चीजें इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आप मुझे जुमेरात का टाइम बता दें बेटा। मैं वो जुमेरात को मैं चाहता हूँ कि मैं ही करवाते हूँ हॉर्स मॉडल, सारे के मॉडल में मुझे लैब करवानी है। एक लैब कराऊंगा, चैप्टर 7 खत्म। जुमेरात को बोलो, नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्लास लेनी, लैब करानी है। अगर आप मुझे कहते हैं